Assalamu alaikum students. Today we will start part B of the chapter 7, that is study of compounds, and today we will start studying ammonia. Okay, ammonia is NH3, chemical formula is NH3. Okay, where nitrogen has one lone pair or non-bonding pair of electrons on it. ठीक, so that leads or give it basic character. Ammonia is a basic gas. ठीक है. Discovery, ammonia was initially called alkaline air. So which compound is called alkaline air? Ammonia. ठीक है. Joseph Priestley first prepared ammonia by heating slaked lime with salt ammoniac. He called the gas as alkaline air. ठीक है. Slaked lime is calcium hydroxide. ठीक है. Now Claude Berthelot studied the chemical composition, that is nitrogen and hydrogen. ठीक है. Which two gas are the chemical constituents of ammonia? Nitrogen and hydrogen. ठीक है. React together and form ammonia gas. Davy further established its basic composition and proved ammonia as a compound formed from the elements nitrogen and hydrogen. ठीक है. occurrence क्या है? ammonia occurs in the free and chemically combined state. free state में कहाँ होती है? in the atmospheric air and natural water. ठीक है. ammonia is also produced when nitrogenous matter decay, जहाँ भी dead and decaying matter होता है absence of air. ठीक है. anaerobic conditions में वहाँ पे बेटा अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है. प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऑन ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल एंड द अमोनीफाइंग बैक्टीरिया ऑन नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर ब्रिंग अबाउट द डीकम्पोजिशन. और कंबाइंड स्टेट में अमोनियम सॉल्ट्स और अमोनिया के लीकर में है. नाउ लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. ओके, from ammonium salts, heating a mixture of an ammonium salt such as NH4Cl, you can take ammonium sulfate as well. ठीक है. NH4 whole twice SO4 with an alkali calcium hydroxide slaked lime, है ना. this is calcium hydroxide, its common name is slaked lime. तो यहाँ पे क्या ले लिया है? this is termed as salt ammoniac. this is NH4Cl is termed as salt ammoniac, ammonium salt. ठीक है. अल्कली ले ली. कौन सी अल्कली ली है? we have taken slaked lime here because it is cheap. okay, readily available and cheap. Plus other alkalis such as NaOH and KOH are deliquescent, that is they absorb moisture from the atmosphere. ठीक है. slaked lime deliquescent नहीं होता है, that's why we have taken slaked lime. why? because it is cheap as well as non deliquescent. ठीक है. अब ये देखिए हमने राउंड बॉटम फ्लास्क ले लिया है टिल्टेड फॉर्म में. क्यों टिल्ट किया गया है? ताकि वाटर वेपर यहाँ पे इकट्ठा ना हो, पास आउट हो जाए सीधे. ठीक है. नाउ रिएक्शन देख लो क्या क्या है. अमोनियम सॉल्ट प्लस अल्कली इन द प्रेजेंस ऑफ हीट करा है, टेम्परेचर प्रोवाइड करा है. क्या क्या मिल रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस अमोनिया. इफ़ वी हैव टेकन अमोनियम सल्फेट सॉल्ट, कोई भी अमोनियम सॉल्ट ले लो, अमोनियम सल्फेट लिया प्लस अल्कली यहाँ पे ले ली NaOH, तो हमें मिलेगा सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस अमोनिया. ठीक है. अमोनिया गैस कलेक्ट हो जाएगी. नाउ इफ़ वी हैव टेकन अमोनियम सल्फेट प्लस स्लेग लाइम, देन वी विल गेट कैल्शियम सल्फेट वाटर एंड अमोनिया. अमोनियम क्लोराइड प्लस NaOH, NaCl वाटर एंड अमोनिया. ठीक है. नाउ हियर यहाँ पे बेटा ड्राइंग एजेंट क्या यूज़ कर रहे हैं? कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट. कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इज यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट. इट विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर. ठीक है. जो भी मॉइस्चर इसके साथ निकल रहा होगा, वाटर निकल रहा है, दिस वाटर दैट इज बीइंग फॉर्म्ड along with ammonia and the other salt will be absorbed by this calcium oxide which is acting as a drying agent here. ठीक है. और अमोनिया गैस कलेक्ट हो जाएगी वाई ग्लास जार में. दिस ग्लास जार विल कलेक्ट अमोनिया गैस बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. बाय बिकॉज अमोनिया इज लेस डेंस देन एयर. अमोनिया इज लेस डेंस देन एयर. ठीक है. तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हमने क्या लिया? सॉल अमोनियक और अमोनियम क्लोराइड plus slaked lime, that is calcium hydroxide. We will get calcium chloride salt plus water plus ammonia. This ammonia gas will be collected by downward displacement of air. ठीक है. Why downward displacement? क्योंकि ammonia gas is less denser than air. Above reactions of ammonium salts with alkalis distinguish them from other salts. Ammonium salts में ammonia is also being produced along with water and the other salt. ठीक है. Sodium sulfate, since salts other than ammonium salt will not react with alkalis on heating to liberate ammonia. दूसरे अमोनियम सॉल्ट्स ही लिबरेट करते हैं अमोनिया अल्कली के साथ रिएक्शन पे. ठीक है. अदर सॉल्ट्स डू नॉट फॉर्म अमोनिया ऑन रिएक्टिंग विद एल्कलीज. ठीक है. नाउ रिएक्टेंट्स क्या क्या थे? अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेग लाइम इन राउंड बॉटम फ्लास्क X. दिस राउंड बॉटम फ्लास्क दैट इज इन टिल्टेड फॉर्म. ठीक है. उसके बाद प्रोडक्ट्स क्या क्या बने? कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड अमोनिया.
Procedure: the reactants, that is ammonium chloride and calcium hydroxide, are ground together and heated slowly in a round bottom flask with its neck sloping downwards. Tilted form में है. Observation: the ammonia gas obtained in flask X passes through a delivery tube into a drying tower and is collected in an inverted glass jar. ये देखो inverted glass jar में collect हो रहा है. This is drying tower which contain calcium oxide as a drying agent. ठीक है. ड्राइंग एजेंट क्या लिया है? क्विक लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड इन द ड्राइंग टावर. प्रिकॉशंस क्या है बेटा? देखो, द रिएक्टेंट्स शुड बी इन फाइनली पाउडर्ड फॉर्म. ग्राउंडेड का मतलब यही है कि इनको पाउडर्ड फॉर्म में कर दिया गया है. अमोनियम क्लोराइड एज वेल एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. टू इनिशिएट मैक्सिमम सरफेस एरिया, जितना ग्राउंडेड या पाउडर्ड होगा हमारा रिएक्टेंट, सरफेस एरिया बढ़ेगा. एंड द स्लेग लाइम यूज शुड बी इन हायर रेशो. स्लेग लाइम को हायर रेशो में लिया जाता है. वाई? बिकॉज NH4Cl सब्लिमेट हो जाता है और स्लेग लाइम इज चीप. तो रिएक्शन रेट को बढ़ाने के लिए वी यूज स्लेग लाइम इन अ हायर रेशो टू कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस ऑफ अमोनियम क्लोराइड दैट इज बीइंग सब्लाइम्ड. ठीक है. अमोनिया गैस इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. वाई? बिकॉज इट इज लाइटर देन एयर. इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हैंस कैन नॉट बी कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. ठीक है. आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? अ ग्लास रॉड डिप्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जब हम ग्लास जार के माउथ पे ले जाएंगे, दिस ग्लास जार वाई, इसके माउथ पे ले जाएंगे. इफ अमोनिया इज बीइंग फॉर्म्ड हियर और बीइंग प्रोड्यूस्ड हियर, देन कॉन्सेंट्रेटेड HCl का जो रॉड डिप करा हुआ है, ठीक है, दैट विल प्रोड्यूस डेंस वाइट फ्यूम्स अलॉन्ग विद द रिएक्शन. जब रिएक्शन करेगा अमोनिया के साथ, देन इट विल प्रोड्यूस डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड. ठीक है. अब इसमें देखिए रिएक्टेंट्स क्या क्या थे. ड्राई अमोनियम क्लोराइड एंड स्लेग लाइम आर थरली मिक्सड एंड हीटेड जेंटली इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. A higher ratio by weight of alkali is used to counteract the loss by sublimation of ammonium chloride on heating in the solid state. Ammonium chloride sublime हो जाता है. ठीक है. Calcium hydroxide is used since it is cheap and unlike other caustic alkalis, that is NaOH and KOH, it is not deliquescent. ठीक है. It does not absorb moisture and convert its state. अमोनियम नाइट्रेट इज़ नॉट यूज्ड इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन सिंस इट इज़ एक्सप्लोजिव इन नेचर. अमोनियम नाइट्रेट नहीं यूज़ होती है. वाई? बिकॉज इट इज़ एक्सप्लोजिव इन नेचर एंड मे इट सेल्फ डीकम्पोज. क्या बना लेगा? नाइट्रस ऑक्साइड, दैट इज N2O एंड वाटर वेपर. नाइट्रस ऑक्साइड इज N2O. ठीक है. ऑल अमोनियम सॉल्ट्स इन जनरल heated with alkalis to liberate ammonia. Round bottom flask is kept in an inclined position. Tilted position में क्यों है ये round bottom flask? The reactants being solid are ground thoroughly to provide maximum surface area for reaction and heated in a round bottom flask kept in an inclined position so that the water vapor form may not trickle back and crack the hot flask. ताकि जो भी water vapor form हो रहा है वो trickle back ना हो. ठीक है. वो क्या होगा? डिलीवरी ट्यूब के थ्रू फौरन ही चला जाएगा ड्राइंग टावर में. ठीक है. अलॉन्ग विद अमोनिया. ड्राइंग ऑफ द गैस. गैस को ड्राई कैसे कर रहे हैं? ड्राइंग एजेंट क्या यूज़ कर रहा है? क्विक लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड. क्यों? क्विक लाइम बीइंग बेसिक इन नेचर डज नॉट रिएक्ट विद द बेसिक अमोनिया गैस. अमोनिया गैस इज ऑल्सो बेसिक, क्विक लाइम इज ऑल्सो बेसिक, तो ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे. अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड यूज़ कर रहे होते तब क्या होता बेटा? अमोनिया इनके साथ रिएक्ट करके, बिकॉज दीज आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है, सॉल्ट दे देती. अमोनिया प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विल फॉर्म अमोनियम सल्फेट. अमोनिया प्लस फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड विल फॉर्म अमोनियम फॉस्फेट एंड अमोनिया प्लस कैल्शियम क्लोराइड विल फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड एंड अमोनिया का एडिशन प्रोडक्ट. ठीक है. कलेक्शन ऑफ द गैस. अब कलेक्ट कैसे करा है? ड्राई अमोनिया गैस इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. अमोनिया गैस इज कलेक्ट बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट. वाई? बिकॉज इट इज़ लाइटर देन एयर. इसकी वेपर डेंसिटी 8.5 है. अमोनिया का मॉलिकुलर वेट कितना है? 17 है. नाइट्रोजन 14 एंड 3 हाइड्रोजन, सो 17 का हाफ हो जाएगा वेपर डेंसिटी, डेट इज 8.5. वेपर डेंसिटी ऑफ एयर इज 14.4. मॉलिकुलर मास एयर का अराउंड 29 होता है, तो उसी हिसाब से वेपर डेंसिटी हो गई 14.4. अमोनिया गैस इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर सिंस इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है. एक वॉल्यूम वाटर अबाउट 702 वॉल्यूम्स एट STP कंडीशंस पे डिजोल्व कर सकता है अमोनिया. 702 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया. ठीक है. नाउ अदर लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड, that is from metal nitrites. ठीक है. N3 minus is the anion here along with the metallic cation. और इस seldom prepared क्योंकि ये costly method होता है. ठीक है. metal nitrites and warm water. तो इसमें राउंड बॉटम फ्लास्क में ले लिया है मैग्नीशियम नाइट्राइट. दिस राउंड बॉटम फ्लास्क X. ऊपर से थिसल फनल से हम क्या टैप फनल से डाल रहे हैं बेटा? वार्म वाटर. ठीक है. फिर वैसे ही ड्राइंग टावर के थ्रू डिलीवरी ट्यूब से होता हुआ अमोनिया ड्राइंग टावर से यहाँ पे वाटर वेपर या मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा और अमोनिया गैस विल बी कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. ठीक है.
अब फॉर्मेशन ऑफ मेटल नाइट्राइड्स कैसे बनाते हैं, बर्निंग मेटल प्लस नाइट्रोजन, ठीक है। मेटल हीटेड कंडीशंस में नाइट्रोजन गैस पास करवा देते हैं, क्या मिल जाता है, मेटल नाइट्राइड। नाइट्राइड की वैलेंसी है 3 - N3-, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला बनाना आपको आता है ना बेटा। नाउ इफ़ वी आर टेकिंग मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक। नाउ यू ऑल नो दैट वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज +2 एंड वैलेंसी ऑफ नाइट्राइड इज -3, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, Mg3N2 विल बी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है। अब अगर हम ले रहे हैं क्या, कैल्शियम नाइट्राइड, अगेन कैल्शियम्स वैलेंसी इज +2 एंड नाइट्रोजन्स वैलेंसी इज -3, तो Ca3N2 will be its chemical formula, Ca3N2. If we are taking aluminium nitride, so aluminium's valency is +3 and nitrogen's valency is -3, so its chemical formula will be AlN, ठीक है। aluminium nitride is AlN, ठीक है। Now formation of ammonia, the reaction देख लिए from metal nitride से, मैग्नीशियम नाइट्राइड +6 वाटर दैट इज वार्म वाटर लिया है, क्या मिल रहा है हमें, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया गैस बीइंग रिलीज्ड, ठीक है। ऐसी कैल्शियम नाइट्राइड के साथ वी विल गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया गैस इज रिलीज्ड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड ऑल्सो गिव्स और ऑल्सो प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया गैस, ठीक है। बर्निंग मेटल्स एग्जाम्पल मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम when burnt in nitrogen gas form the respective metal nitrides, ठीक है। when warm water is added to the products formed, that is the metal nitrides being formed by adding nitrogen gas to the burning metals, तो जो बन रही है हमारी मेटल नाइट्राइड्स उसमें अगर हम वार्म वाटर ऐड करेंगे तो दे विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मीन्स लिसिस और ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और किस में ब्रेक हो जाएगी, इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट हाइड्रोक्साइड्स एंड अमोनिया गैस, ठीक है। एंड टू गिव पंजेंट अमोनिया गैस की स्मेल पंजेंट होती है, ठीक। द करेस्पॉन्डिंग इनसॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट आउट कर जाएगी और हमारा अमोनिया गैस विल बी कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, ठीक। प्रोसीजर, द रिएक्टेंट दैट इज मैग्नीशियम नाइट्राइड इज प्लेस्ड इन द ड्राई फ्लास्क X, दिस ड्राई फ्लास्क X, ठीक, राउंड बॉटम फ्लास्क। उसमें हमने क्या डाला, टैप फनल से वार्म वाटर डाला, ठीक है। अमोनिया गैस ऑब्टेन जो हुई फ्लास्क X में वो पास थ्रू अ डिलीवरी ट्यूब इनटू अ ड्राइंग टावर एंड इज कलेक्टेड इन एन इन्वर्टेड ग्लास जार। ड्राइंग एजेंट अगेन यूज्ड इज कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। प्रिकॉशन क्या है, द लोअर एंड ऑफ द थिसल फनल शुड डिप बिलो द वार्म वाटर इन द फ्लास्क X, दिस फ्लास्क X, ओके, राउंड बॉटम फ्लास्क। नाउ सिंस मेटल नाइट्राइड्स आर एक्सपेंसिव द मेथड इज सेल्डम यूज्ड, जनरली यूज नहीं होता है, ठीक है। कलेक्शन, अमोनिया गैस इज कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, सिंस इट इज लाइटर देन एयर इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हेंस नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन कैसे कर रहे हैं, ग्लास रॉड डिप्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द जार Z, दिस जार Z, ठीक है, जिसमें अमोनिया गैस कलेक्ट हो रही है। इफ अमोनिया गैस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड देन डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। नाउ मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस, this is industrial method of manufacture of ammonia. Large scale production of ammonia is done by this process only, that is Haber's process, ठीक है। now nitrogen reacts with the hydrogen under specific conditions liberating ammonia. equation देख लो, nitrogen plus hydrogen, 1 volume of nitrogen will react with 3 volumes of hydrogen to produce 2 volumes of ammonia, ठीक है। and this process is reversible. reactants क्या क्या है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन द रेशियो ऑफ 1:3 बाय वॉल्यूम, ठीक है। नाइट्रोजन 1 वॉल्यूम एंड हाइड्रोजन 3 वॉल्यूम्स। प्रोडक्ट अमोनिया है 2 वॉल्यूम्स, ठीक है। तो टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं, 1 + 3 डेट इज 4 वॉल्यूम्स। टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, 2 मोल्स, 4 मोल्स रिएक्टेंट के एंड 2 मोल्स प्रोडक्ट्स के, ठीक है। कंडीशंस देख लो, रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल है, एक्सोथर्मिक है, हीट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, प्रोसीड्स विद अ डिक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। एक्सोथर्मिक है लेकिन तब भी हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड कराने के लिए वी हैव टू सप्लाई सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। तो प्रोसीड्स विद अ डिक्रीज इन वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम कम हो रहा है ना, 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन लिया है, 3 वॉल्यूम्स हाइड्रोजन लिया है, टोटल 4 वॉल्यूम से और हमें 2 वॉल्यूम्स अमोनिया मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है यानी डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक। लो टेम्परेचर्स एंड हाई प्रेशर्स फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ही फेवर करेंगे, ठीक है। और टेम्परेचर लो भी कितना लो होना चाहिए, 450 to 500 डिग्री सेल्सियस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर वी हैव टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू कोलाइड द मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। नाउ
प्रेशर कितना है 200 to 900 एटमॉस्फेयर्स इज द ऑप्टिमम प्रेशर, 200 to 900 एटमॉस्फेयर्स और ATM। ठीक है, कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है फाइनली डिवाइडेड आयरन, फाइनली डिवाइडेड आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ठीक, कैटलिस्ट व्हाट डू यू मीन बाय कैटलिस्ट? विच alter the rate of the reaction without being itself taking part in the reaction, it just alter the rate of the reaction। ठीक है, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज करता है, नेगेटिव डिक्रीज करता है। हेयर पॉजिटिव कैटलिस्ट आयरन, फाइनली डिवाइडेड आयरन इज एक्टिंग एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट, दैट इज इट इज इन्हांसिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब फॉरवर्ड का रेट ही इंक्रीज नहीं होगा, रिएक्शन इज रिवर्सिबल, तो दोनों रेट इंक्रीज होगा ऑफ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड रिएक्शन, दोनों का ही होल रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा। ठीक है, जितनी तेज़ी से नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाएंगे उतनी ही तेज़ी से अमोनिया वापस नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना लेगा। ठीक है, तो इस वजह से हमको अमोनिया फ़ौरन ही कलेक्ट करना रहेगा। ठीक, अगर हम प्रोडक्ट जो भी बन रहा है उसको फ़ौरन कलेक्ट कर लेंगे तो रिएक्शन विल शिफ्ट टू द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, नाउ प्रमोटर, व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोटर? प्रमोटर जस्ट enhance the property of the catalyst। तो जो भी कैटलिस्ट है डेट इज आयरन, हेयर इज द कैटलिस्ट, इसको मोलिब्डेनम क्या करेगा? इसकी कैटेलिटिक प्रॉपर्टी को इन्हेंस करेगा। ठीक, नाउ प्रिकॉशन, इम्प्योरिटीज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2S में पॉइजन द कैटलिस्ट। पॉइजन द कैटलिस्ट मीन्स कैटेलिटिक प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देता है कैटलिस्ट की। अगर ये सारी गैसेज होंगी, इनमें से कोई भी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2S। ठीक है, हेंस द नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्टेंट मिक्सचर मस्ट बी फ्री फ्रॉम these above gases। ठीक, now this is the flow chart of the Haber's process। ठीक है, अब देखो एक एक करके। 1 volume nitrogen gas and 3 volumes hydrogen gas are gone into this compression chamber। ठीक है, compression chamber that is at, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों गैसेस कंप्रेस हो रही हैं एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर कितना ऑप्टिमम प्रेशर है? 200 to 900 एटमॉस्फेयर्स। ठीक है, उसके बाद कंप्रेशन चैम्बर से हो के गैसेस किधर जा रही हैं? इधर कैटेलिटिक चैम्बर में। अब कैटेलिटिक चैम्बर में यहाँ पे देखिए बेटा, हीट एनर्जी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिकली। ठीक है, हीट एनर्जी भी प्रोवाइड हो रही है। टेम्परेचर इंक्रीज, कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है? 450 to 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट है? फाइनली डिवाइडेड आयरन इज द कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम इज द promoter of the catalyst that is enhancing its catalytic property, that is the catalytic property of iron। ठीक है, at 450 to 500 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर भी है, इलेक्ट्रिकली हीटेड चैम्बर है, ये इलेक्ट्रिकली हीटेड चैम्बर है एंड इट इज़ कैटेलिटिक चैम्बर। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों गैसेज आपस में कंबाइन करके क्या फॉर्म कर लेंगी? NH3। ठीक है, NH3 विल कंबाइंड। अब NH3 के साथ आपको ये पता है कि दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, अमोनिया जो फॉर्म हो रहा होगा वो वापस से कुछ सर्टेन अमाउंट बना रहा होगा, किसका? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का भी। तो अब ये जो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है वो वापस से, जो अनरिएक्टेड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस है वो वापस से अनयूज नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएंगी? रिसाइकिल हो जाएंगी और कंप्रेशन चैम्बर में दोबारा से भेज दी जाएंगी, है ना। ठीक है, अनरिएक्टेड वाली। और जो भी अमोनिया बचा है वो इस कूलिंग चैम्बर में आएगा। ठीक है, यहाँ पे कूलिंग पाइप्स लगे हैं। ये कूलिंग पाइप्स क्या करेंगे? अमोनिया को कंडेंस कर देंगे, लिक्विफाई कर देंगे। लिक्विफैक्शन इसका बहुत इजी होता है, वेरी लो टेम्परेचर्स पे ये लिक्विफाई हो जाती है। अब यहाँ से लिक्विड अमोनिया कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ लिक्विड अमोनिया एंड दिस इज़ द कंडेंसर विद कूलिंग पाइप्स, जहाँ पे अमोनिया का कंडेंसेशन हो रहा है। जो अनयूज गैसेज हैं वो वापस चली जा रही हैं, अनरिएक्टेड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिसाइकिल हुई जा रही हैं और वापस से कंप्रेशन चैम्बर में आ रही हैं। फिर वही सारे प्रोसेस से होती हुई अमोनिया फॉर्म करके आगे हो जाएगा। ठीक, कलेक्शन ऑफ लिक्विड अमोनिया का कलेक्शन हो गया। नाउ दिस इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ हेबर्स प्रोसेस। ठीक, फर्स्ट nitrogen and hydrogen are mixed in the compression chamber, then go through the electrically heated catalytic chamber, जहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। अमोनिया के फॉर्मेशन के बाद अमोनिया को हम कैसे कलेक्ट कर रहे हैं? थ्रू कंडेंसेशन और लिक्विफैक्शन। लिक्विड अमोनिया कलेक्ट हो गई, जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन अनरिएक्टेड बची, यानी जो बैकवर्ड रिएक्शन हुआ था उसके थ्रू ये वापस रिसाइकिल होकर कहाँ भेज दी गई? कंप्रेशन चैम्बर में। फिर रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। ओके बेटा, नाउ 1 by 1 हम पढ़ते जाएंगे सारे प्रोसेसेस। पहला क्या है? रिएक्टेंट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। द रिएक्टेंट्स आर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन द रेशियो 1:3 बाय वॉल्यूम। ठीक है, आर फर्स्ट पास्ड इनटू द कैटेलिटिक चैम्बर। अब रिएक्टेंट नाइट्रोजन गैस को हमने कैसे कलेक्ट किया है? थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। लिक्विड एयर कंटेन नाइट्रोजन, है ना, एयर कंटेन नाइट्रोजन ना। द रिएक्टेंट हाइड्रोजन इज ऑब्टेन फ्रॉम वाटर गैस, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का मिक्सचर। बॉश प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोजन ऑब्टेन हुआ है।
A higher ratio of hydrogen or an increase in concentration of the reactants favors the forward reaction to give optimum yield of ammonia. Higher ratio लेंगे तो forward reaction will be favored. The reactants should be free from impurities क्योंकि if the reactants will contain impurity then it will poison the catalyst. The impurities tend to poison the catalyst and reduce its effectiveness or catalytic nature. Now temperature कितना है? Optimum temperature of 450 to 500 degrees Celsius is used in the Haber's process और reaction is exothermic. It is favored higher yield of ammonia by lowering the temperature. ठीक है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया है, 450 to 500 डिग्री सेल्सियस ही लिया गया है. However, if the temperature is low, the speed of the reaction is slow and the yield of ammonia is low. अगर इससे कम कर देंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर या बेस्ट टेम्परेचर यही है रिएक्शन का. ठीक, दैट इज़ 450 to 500. Above this temperature ammonia may decompose to give nitrogen and hydrogen. अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड. ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हो रहा है. एक्सटर्नल हीटिंग इज देयरफॉर नॉट रिक्वायर्ड. एक्सटर्नल हीटिंग नहीं चाहिए क्योंकि ये रिएक्शन इटसेल्फ इज इन इटसेल्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, प्रेशर एंड ऑप्टिमम प्रेशर ऑफ 200 to 900 एटमॉस्फेयर इज यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस. इफ अ रिएक्शन प्रोसीड्स विद डिक्रीज इन वॉल्यूम यानी यहाँ पे देखिए वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज कंबाइनिंग विद 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया. तो 4 वॉल्यूम से हमें 2 वॉल्यूम मिल रहा है. देन द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होंगे. ठीक है, एंड फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड. हाउएवर इफ द प्रेशर इज टू हाई, अगर हम प्रेशर ज़्यादा हाई कर देंगे द प्रोडक्शन प्लांट मे नॉट विदस्टैंड द प्रेशर. तो प्रोडक्शन प्लांट इतना प्रेशर विदस्टैंड नहीं कर पाएगा और डैमेज कॉज हो जाएगा. ठीक है, कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड टू एसेलरेट द रिएक्शन एट ऑप्टिमम टेम्परेचर. कैटलिस्ट की क्यों ज़रूरत पड़ी है? ताकि ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन का रेट बढ़ जाए, एसेलरेट हो जाए. ठीक है, द कैटलिस्ट यूज्ड इज फाइनली डिवाइडेड आयरन. कौन सा कैटलिस्ट यूज हुआ है? फाइनली डिवाइडेड आयरन. इट इज मिक्सड विद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ प्रमोटर दैट इज मोलिब्डेनम विच इनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट और इट्स कैटालिटिक प्रॉपर्टी. कैटलिस्ट ओनली एसेलरेट्स द रिएक्शन एंड डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द रिएक्शन, हेंस इट डज नॉट अफेक्ट द परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया. वो अफेक्ट नहीं करेगा. द प्रोडक्ट अमोनिया. अब अमोनिया जो प्रोडक्ट है हमने उसको कैसे कलेक्ट करा है? अमोनिया इज सेपरेटेड एंड रिकवर्ड फ्रॉम द अनकम्बाइंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बाय टेक्निक्स बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया. ठीक है, अमोनिया ईजिली लिक्विफाई हो जाती है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ईजिली लिक्विफाई नहीं होती हैं. अमोनिया इज ईजिली लिक्विफिएबल. इट कंडेंसेस टू अ लिक्विड अराउंड -33 डिग्री सेल्सियस एट 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये लो टेम्परेचर पे ईजिली लिक्विफाई हो जाती है. नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर डिफिकल्ट टू लिक्विफाई. तो ये वेपर फॉर्म में ही, गैशियस फॉर्म में ही रहेंगी और इनको वापस से हम भेज देंगे किसमें? कंप्रेशन पंप में रिसाइकलिंग कर देंगे. ठीक है, नाउ डिजॉल्विंग इन वाटर. अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर और ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होती हैं वाटर में. इस वजह से ऐसे भी सेपरेट कर सकते हैं बाय डिजॉल्विंग अमोनिया इन वाटर. इन पूरे गैशियस मिक्सचर को हम अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो अमोनिया विल डिजॉल्व एंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन being gases separates out. Hence liquefaction and dissolution in water are two techniques used for separating ammonia from the uncombined nitrogen and hydrogen reactant mixture using Haber's process. ठीक है.